Good morning, dear students of class 8. This is your physics teacher Vikas. I hope सब अपने घर में सेफ होंगे और अच्छे से नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, वीडियो लेक्चर्स, वीडियो लेसन्स अच्छे से देख रहे हो. Now I just want to inform you before we start with the second chapter, a new chapter, that please do watch the videos, and in case you are facing some problem with it, please download the video so that you can save data and you can always rewind it, you can pause the video so that you do not have to waste much of your data. Downloading the video should solve your problem, because I've been hearing from few students that there is some problem with the data. So this is the solution everyone should adopt, and please do watch this video. The principal sir has taken very good initiative for all of you, and please, because we are completing syllabus with that, because we are already done with the first chapter, we are beginning with the second chapter, and this is a very small chapter, so we will be completing this chapter pretty soon. Now in this chapter we will go back to the concept of density, because we want to learn about a new concept, that is relative density, in class 8. You have already studied about density in class 7, आप पढ़ के आए हैं वहाँ पे, पर इसमें हम डेंसिटी को थोड़ा सा डेप्थ में और उसका मीनिंग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, so that our concept of density is very clear. Because many a times I have seen students knowing the questions of density, they are able to solve it as well, they give the answers as well. However, as far as the conceptual knowledge is there about the meaning of density, that seems to be lagging somewhere. Okay, so we will do that for you, don't worry. Apart from relative density, we will also study about the concept of flotation, because the next chapter after the second chapter is physical quantities and measurement that we are going to start, and the next one is based on the concept of flotation. Now also at the end of it we will study a little concept about convection. So you must have yes, in 7th class you did conduction, convection and radiation, so you have an idea, a little idea about that. We will try and study in more detail this time. Okay, beginning with the concept of density, I want to remind you of these two statements which you might have come across during class 7th as well. Now the first statement I am going to read is, same masses of different substances have different volumes. इसमें कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं. Let's assume we have cotton. सब familiar है what cotton is, and we have iron. ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 kg of cotton है and then 1 kg of iron. अब मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन है, दोनों की मास सेम है, आप देख रहे हैं, 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी या 1 किलोग्राम ऑफ आयरन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? Yes, you're right. Of course, the cotton would occupy more space. ठीक है, then iron. Now यही concept अगर हम देखें, और अगर मैं आपके हाथ में, जितना आपका हाथ का ये स्पेस है, यहाँ पे कॉटन रख दूँ एक हाथ में, और दूसरे हाथ में पूरे हाथ के स्पेस जितना ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही मैं आयरन रख दूँ, आपको कहाँ पे ज़्यादा भारी महसूस होएगा? Of course, the right side which has iron on it. ये concept of भारीपन, heaviness is density.
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, विच इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड दैट देयर आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, ईच हैव सेम मास but they are occupying different volume, different space. Okay, now see the second one. Same volume of different substances this time. Volume same है, space same है, may have different masses. Okay, let's take an example. Imagine the room in which you are at the moment. हम उस रूम को अच्छे से रुई से भर दें, कॉटन से भर दें, ठीक है, और दूसरे केस में हम उसी रूम को आयरन से भर दें। अब रूम स्पेस सेम है, दैट मीन्स वॉल्यूम सेम है। अब किस केस में मास ज्यादा होएगा? ऑफ कोर्स सेकंड केस में, जब आयरन से आप फिल करेंगे। Are you getting it? So the statement itself clarifies that same volume of different substance may have different mass. ठीक है? अब what can we understand from these two statements? With the help of these two statements, we can understand, see from the first statement, when we took the mass of both of different type of substances equal, that the volume is different. तो इसमें हमने ये देखा कि आयरन जो है हम कह सकते हैं is more dense because it is occupying less space. dense का मतलब क्या होता है? भीड़, ठीक है, तो किसकी हम भीड़ की बात कर रहे हैं? क्राउडेड कौन कर रहा है? जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं। दैट मीन्स आयरन के मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजर टू ईच अदर। आपने ज्योग्राफी में भी थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लाइक कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन विलेजेस। क्यों? क्योंकि वहां पे काफी खाली जगह होती है, खेत होते हैं, ठीक है, तो फार्म लैंड्स रहती हैं, तो वहां पे कोई रहता ही नहीं है, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां कम हो जाती है। मेट्रोज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है और भी ज्यादा हो जाती है, लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, ठीक है, तो सेम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट इन डेंसिटी एज वेल, कि किसके पार्टिकल्स दे आर मोर क्लोजली पैक्ड, कौन पास में है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। आपको लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था सॉलिड लिक्विड गैसेस में दैट मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, सो सॉलिड्स हैव मोर डेंसिटी। इस केस में नाउ आयरन और कॉटन दोनों सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं, बट इन आयरन दे आर मोर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। सो वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट आयरन इज मोर डेंसर देन कॉटन, ठीक है। अब दूसरा वो एग्जांपल ले सकते हैं, कॉटन की जगह प्लास्टिक ले सकते हैं। सेम चीज, अगर आप रूम पूरा प्लास्टिक से भर दें या आयरन से भर दें, आयरन का मास ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बोथ द केसेस आयरन इज मोर डेंसर। तो ये हमें आइडिया देता है। वहां से हमने डेंसिटी की डेफिनेशन जो ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत पता है कि इट इज डिफाइंड एज हाउ मच इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, इनकी रेशियो आप निकालिए, इट गिव्स यू डेंसिटी, ठीक है। तो इफ यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, सो हियर यू सी मास, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो यहां पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट प्लीज रिमेंबर इट इज मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर हमें सीजीएस यूनिट लिखने हैं डेंसिटी के, तो मास का सीजीएस यूनिट होता है ग्राम्स और वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। अब हमें अगर रिलेशन पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो हमें बताना है
कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, उसमें कितने ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होंगे। ठीक है, सो हाउ वुड वी प्रोसीड? हमें बेसिकली किलोग्राम के ग्राम्स और मीटर क्यूब के सेंटीमीटर क्यूब बनाने हैं। तो हमें पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब क्या होता है? ये है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। This you must have done in mathematics. That exponential, the powers get added. 1 सबकी पावर है, ऐड होके 3 बन जाए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? We have 1000 ग्राम्स। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। इस मीटर में कितने सेंटीमीटर है? सेम 100 सेंटीमीटर। और थर्ड मीटर में भी कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर। तो ये 3 जीरोस कट हो जाएंगे और नीचे 3 जीरो बच गई है। तो ये किसमें, मैं यहीं पे लिख देता हूं कि ये बन जाएगा आपका 1/1000 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं यहां से इस तरफ ले आता हूं। हमारे पास अल्टीमेटली क्या आया? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 1000 में उठा के इस तरफ ले जाऊंगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होके दिस इज व्हाट वी गेट। तो अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आ गया? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर and then we go to that side, and the last step is this one. Okay, now if we are given, अब इस डेंसिटी का मतलब क्या है? ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन इस टाइप का है। लेट्स इरेज दिस पार्ट। In case you miss somewhere writing down some information, go back and pause the video and make a note of it. Okay, so if we are given the density of a substance is 8 gram per centimeter cube, what is the meaning of this statement? The meaning of this statement is कि कोई substance अगर उसकी density इतनी है 8 grams per centimeter cube, तो उसका मतलब ये है कि उस substance के 8 grams 1 centimeter cube of space में है। मान लीजिए कि आपने ये पूरा एक्यूरेटली तो नहीं बन पाएगा। ये क्यूब है, क्यूब की आपको पता है कि साइड्स जो होती हैं सब इक्वल होती हैं। मान लीजिए हमने ये 1 सेंटीमीटर ली है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जिस सब्सटेंस का आप बात कर रहे हैं कि 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इस स्पेस में, इस क्यूब के अंदर
उस सब्सटेंस के 8 ग्राम फिट होंगे। दिस इज द मीनिंग। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी के बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं? सी, देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन फिगर आउट इफ वी नो द डेंसिटी पार्ट। फॉर इमेजिन हम लोग इतनी कंस्ट्रक्शन करते हैं, व्हाइल डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हमें फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है, कितने वो जो पिलर का सपोर्ट हम देते हैं कितना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, उसकी डेंसिटी का पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इट वुड बी अ पुअर डिजाइन एंड पुअर कंस्ट्रक्शन। नाउ सो दिस इज वन यूज ऑफ डेंसिटी दैट इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। सेकंड जो है, थोड़ा सा अभी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल टू फाइंड आउट द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। Many substances purity can be found out by using the concept of density. For example, milk is one. जैसे जो प्योर मिल्क है उसकी एक डेंसिटी होगी, ठीक है? तो जो दूध डिलीवर होता है हमें, या हम पैकेट्स में दूध लेके आते हैं, उसमें अगर चेक करना हो कि कुछ मिलावट तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डेंसिटी का एक चेक कर सकते हैं। अगर डेंसिटी कम या ज़्यादा हुई तो दैट मीन्स इट्स नॉट प्योर मिल्क, ठीक है? ऐसे हम बहुत सारे सब्सटेंसेस की डेंसिटी के बारे में पता कर सकते हैं। Now the third is to understand the concept of flotation. Now we know कि किसी लिक्विड में, हम लिक्विड को ज़्यादातर, क्योंकि वाटर इज ऑल अराउंड अस, ठीक है, तो वाटर हमारे आसपास रहता है, तो हम वाटर की पहले बात करते हैं। कोई चीज वाटर में सिंक होएगी या फ्लोट करेगी, वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है? वी विल स्टडी दैट। यूजुअली आपको पता ही है, आपने भी देखा है कि जो चीज हैवी होती है वो सिंक कर जाती है, जिसकी डेंसिटी सब्सटेंस की वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो सिंक कर जाती है। पर कुछ सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी कम होती है वो वाटर में फ्लोट करती है, ठीक है? अब अगर हम ये वाटर की जगह कोई और लिक्विड ले लें, तब भी इस चीज का फर्क पड़ता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो वाटर में फ्लोट कर रहे थे पहले, पर हमने जो वाटर की जगह कोई और लिक्विड ले लिया, उसमें ये सिंक कर जाए। ऐसा भी हो सकता है, देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट इफ वी स्विच वाटर विद सम अदर लिक्विड, से मरकरी, तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में सिंक कर जाते हैं पर मरकरी में फ्लोट करते हैं। रिमेंबर मेटल कि मैं आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, मरकरी इज अ टाइप ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन लिटिल मोर डिटेल आफ्टर दैट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस दैट वी डिस्कस अबाउट दैट। अब डेंसिटी की कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको बड़े अच्छे से ये दिमाग में रखना है। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप, ओके, और साइज ऑफ द सब्सटेंस। अगर हम आयरन लेते हैं, एंड आयरन कैन बी इन डिफरेंट शेप्स, ठीक है, आप उसको कोई शेप दे सकते हैं अपनी पसंद की, पर दैट डज नॉट मीन कि उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है? आयरन, वी हैव आयरन इन द फॉर्म ऑफ पिलर्स, वी हैव आयरन इन द फॉर्म ऑफ नेल्स, ठीक है? तो ऐसे ये नहीं है कि उसकी डेंसिटी उससे डिफरेंट हो जाएगी, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। ऑल्सो वी स्टडीड इन लास्ट चैप्टर एज वेल दैट इफ वी हीट अ सब्सटेंस, ठीक है, रिमेंबर the kinetic energy of the molecules increases, they try to go away from each other, and if they are trying to go away from each other, they are trying to occupy more space, their volume increases, hence density। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा
देखो मास तो चेंज करना नहीं है, जो मॉलिक्यूल्स का मास है वो तो सेम रहना ना। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो ये ओवरऑल इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट with the change in temperature usually the density decreases and on cooling the density increases. But there are some exceptions. There are some substances which at times at certain temperature they do not show the same behavior. And one such exception, and which is very useful and for us, is water. वाटर जो है उसका टेम्परेचर अगर मान लीजिए 30, 40 जितना भी है, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता रहता है पर 4 डिग्री तक। अगर हम 4 डिग्री से टेम्परेचर और कम करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सो दिस इज एन एनॉमली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज the density of water is maximum at 4 degrees Celsius and its volume at 4 degrees Celsius is minimum. वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तब भी उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर 4 डिग्री से कम हुआ 3 डिग्री 2 डिग्री तब भी उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ठीक है? तो ये प्लीज रिमेंबर दैट 4 डिग्री पे उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है। तो अगर वॉल्यूम 4 डिग्री पे मिनिमम है तो डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होएगी। एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? तभी हम जो डेंसिटी ऑफ वाटर लिखते हैं, अब बहुत जगह देखने वाले हैं, दैट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट्स में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और हमने क्या किया था? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसके इक्वल था? 1 ग्राम। तो अगर ऐसे यूनिट में अगर आपको डेंसिटी ऑफ वाटर लिखनी है दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर सीजीएस में लिखनी है तो दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस whose mass is 10 kg and volume is 2 मीटर। ऐसा एक न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट रहता है 8th क्लास में। आप लेके चलिए कि आपके एग्जाम्स में इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा। ठीक है? नाउ सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको जो गिवन है वो लिखना जरूरी है। मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? 10 केजी। वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब। और डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, डेंसिटी डी, कैपिटल डी फाइंड करनी है। सबसे पहले लिखने के बाद गिवन आपने मेक श्योर करना है कि ये सारे या तो एसआई यूनिट में हुए या सारे के सारे सीजीएस यूनिट। नाउ वी कैन क्लियरली सी मास इज गिवन इन केजी व्हिच इज एसआई यूनिट, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब दैट इज आल्सो एसआई यूनिट। तो हम फटाफट अपना फॉर्मूला यूज करके वैल्यू पुट करके 10 किलोग्राम 2 मीटर क्यूब एंड आंसर 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकालते हैं। ठीक है?
Please make a note of it. Understand the concept how to solve a numerical. Solving one numerical based on density is very important for you. Now, after that, we have to solve problems of density on two type of solids. एक आपके सॉलिड होते हैं रेगुलर सॉलिड्स, दूसरे हैं इर्रेगुलर सॉलिड्स। ठीक है, रेगुलर सॉलिड्स में वो सॉलिड आते हैं जिनकी कोई रेगुलर शेप, जो ज्योमेट्रिकल शेप आपको पता हो, जैसे ये क्यूब है, कोई ऐसा सॉलिड। रेगुलर सॉलिड्स में शेप क्यूब है, क्यूबॉइड है, देन वी हैव सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, स्फेरिकल शेप। ये सारी की सारी 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर आपकी 2 डायमेंशन होती हैं। तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 3 डायमेंशंस होती हैं। तो जिनमें रेगुलर सॉलिड्स में ये शेप है तो वो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल, स्फीयर। क्यों इनको हमने कैटेगराइज अलग अलग क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने वॉल्यूम निकालने हैं तो हमें उसके फॉर्मूला आता है। जैसे क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगर सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच, आर रेडियस होता है, ये सिलेंड्रिकल है आपका। ये आर है और ये सेंटर तक, यहां तक ये आपका एच है, इसको हाइट बोलते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या फिर 22/7। स्फेरिकल शेप जैसे बॉल की होती है पर नॉट हॉलो, बॉल तो अपनी अंदर से वो खाली होती है ना, नॉट हॉलो। ये स्फीयर हम वैसे लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस, पाई इज 3.14। इर्रेगुलर सॉलिड्स, इन शेप्स को छोड़ के अगर सॉलिड की कोई भी जो शेप है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टोन लीजिए, स्टोन की शेप को फिक्स होती है नहीं, ठीक है। तो स्टोन जो है आपकी एक इर्रेगुलर शेप में आता है। तो हमें अगर उनका डेंसिटी निकालनी है तो रेगुलर सॉलिड्स इजी। आप क्या करेंगे, आप उनका मास मेजर कर सकते हैं। यू कैन यूज फिजिकल बैलेंस फॉर दैट। यू कैन मेजर मास, use the formula to calculate the volume and then divide mass by volume, you get density. However, irregular solids में अगर आपको कोई नया मेथड सोचना पड़ेगा, तो नया मेथड जो है irregular solids की डेंसिटी मेजर करने के लिए, मास तो मेजर हो जाएगा फिजिकल बैलेंस से, तो हमें वॉल्यूम कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमने एक इनडायरेक्ट मेथड्स देखे हैं। उसमें मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि क्या करते हैं हम। आप उसके बाद आपको मैं स्टेप्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्टेप्स दे दूंगा। जैसे आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप में आपने एक पानी भर लिया टॉप पर, ठीक है। आप एक थ्रेड लेंगे, जो भी उसकी शेप है, आड़ी टेढ़ी जैसा भी स्टोन है, ठीक है। थ्रेड लेके आप उसको ऐसे पानी में डुबो देंगे। ये यहाँ पे आप रफ भी रख सकते हैं। एक आपका कॉन्सेप्ट है जो हम आपको आगे भी डिस्कस करेंगे, पर अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम जैसे अपने पास एक बकेट फुल ऑफ वाटर है, अगर आप उसमें कोई चीज़ डिप करते हैं और वो पूरी भरी हुई है, तो आप डिप करते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकलता है। रिमेंबर दिस थिंग कि जितना उस ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जितना वॉल्यूम होगा, उतना ही
वॉल्यूम का पानी बाहर गिरेगा। तो क्या होगा अल्टीमेटली, व्हेन यू डिप दिस इन वाटर, द वाटर विल कम आउट, तो ऐसे ट्रफ में इकट्ठा हो जाएगा। वी विल मेजर दिस वॉल्यूम एंड वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। ठीक है। एक और होती है हमारे पास यूरेका कैन, जिसको हम बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा ये रहता है, ये ऐसे एक स्पाइक्स बनी होती है। ठीक है। तो पानी जो हमने काफी टॉप तक भरा हुआ है, तो जैसे ही इसके टॉप से पानी जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा, और ऐसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो पानी हमने ऐसा इतना भरा हुआ है कि बाहर ना निकले। दिस इज विद द हेल्प ऑफ यूरेका कैन। तो आप यहाँ से ऐसे डिप करके स्टोन जो है या जो भी बॉडी है उसको करेंगे, द वाटर लेवल वुड राइज एंड वुड कम आउट, गेट डिपॉजिटेड इन दिस ट्रफ, और आप वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से मेजर कर लीजिए। ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपकी बुक में है, तो आई गिव यू द स्टेप्स, material required, procedure, and all that. But I just wanted to give you a basic understanding. So this is about irregular solids, how we calculate the volume, and for regular solids it's pretty easy. तो मास तो आपको फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस से आ ही जाएगा, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द रेशियो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गिव्स द डेंसिटी. ठीक है. तो इन द सीरीज ऑफ डेंसिटी, जो लास्ट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, इफ यू कुड कम ऑन दिस साइड, कि हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में एक सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है. जैसे हम लेट्स टेक वाटर एज एन एग्जांपल. इन सॉलिड स्टेट इट इज इन आइस एंड इन लिक्विड स्टेट इज इन वाटर, और गैसियस स्टेट में स्टीम है. ऐसे ही और सब्सटेंस है, वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. हम उनको हीट करें, वो मेल्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में, और फर्दर उनके हम वेपर भी बना सकते हैं. ठीक है. तो हम एक जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि एक आपके पास सब्सटेंस है, तो अगर उसकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम देखें कि अगर वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है या वही सब्सटेंस लिक्विड में या गैसेस में, हाउ वुड इट बिहेव इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. So we already know that the solid state of the substance has maximum density, then liquid, and then gas. This we are knowing. We are knowing it from our chemistry class as well, first chapter matter, and this is the same chapter we did in physics with a twist in it. Now let's understand that. Why? Simple explanation. Because in solid the particles occupies less volume because they are closely packed, they are close to each other, so they have higher density. ठीक है, simple explanation. Liquid occupies slightly greater volume, so that is why they have more dense, they have more volume than solids, but less density than solids. But in gases they occupy more volume, and hence वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत कम. ठीक है. बट इफ वी टॉक अबाउट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, तो हमें क्या बताना है, तो वही चीज है. तो फर्स्ट इज द पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स. इन सॉलिड स्टेट वी नो दैट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, whereas in liquid state the particles are comparatively loosely packed. ठीक है. तो gaseous state में we say that particles are not packed at all. They are meaning क्या है, they can move freely. ठीक है, in the space. तो इसकी वजह से sorry, the more closely the packed particles are, the density would be automatically more. ठीक है. अब हमें कॉन्सेप्ट एक चीज समझनी है. We studied about how or what is the effect of heat on the solid, liquid, and gaseous state. So please try and understand it. We say that
there is very little effect on solids on heating. हीट करने से भी जो सॉलिड है, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, जैसे 25 था आपने 35 कर दिया, तो जो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, उसके मॉलिक्यूल्स तब भी टाइटली पैक्ड रहते हैं, मीनिंग उनका वॉल्यूम जो है एक्सपेंशन फिर भी नहीं होता. सो दैट इज व्हाई वी से दैट सॉलिड्स आर लीस्ट एक्सपेंडेबल, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम. इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी जो है वो बरकरार रहती है, दे आर ऑलवेज डेंसर. However, liquid and gases, they are fluids. So when we supply heat energy to them, their particles are more or less, they can move away from each other. तो liquids और gases जो fluids हैं उनमें expansion ज़्यादा देखी जाती है. इसको हम thermal expansion कहते हैं. We have a separate chapter by this name as well for the next term. But you need to understand now, it would be very helpful, that thermal expansion of solid is minimum 0 at normal temperatures. At very high temperature अगर हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत expand किए, but otherwise solids they are not expanding. However, liquids and gases, they both are. Obviously, liquids are less expandable than gases. ठीक है. So with that, mostly we have covered density as a topic from all the aspects. If something is left, I'll take it on in the next video lesson, and we will start with the relative concept of relative density, and most probably with the next video lesson we'll end this chapter.